ये चल रहा है। You doing this up? करके लगा सब फ्लिप करो। Okay, so today we are going to see the course on protecting groups in organic synthesis. ये जो टॉपिक है ये प्योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एडवांस सिंथेसिस से रिलेटेड है, बिकॉज प्योर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में we use a lot of protection and deprotection strategies in order to reach or get our target molecule. So today I will give you some initial background about protecting groups in organic synthesis. So the overall course contents are today's lecture, introduction to protecting groups, और फिर अल्कोहल एंड फिनोल प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, किस तरह के ग्रुप्स, which kind of groups we use for the protection of alcohols and phenols. Afterwards, we are going to see amine protecting groups. These are the main functional groups which are present in the organic molecules. Therefore, we are going to see one by one these different types of protecting groups which are used for the protection of alcohols, amines, and then carbonyls and diols, and then carboxyl and thiol protection, orthogonality and deprotection strategies, and at the end we will see application of these different protecting group strategies in the advanced synthesis. So this course is pure organic chemistry course. So let us start our first lecture, introduction to protecting groups. So why do we need to use the protecting groups during organic synthesis? Do you have some idea? Can somebody tell me why we need to use the protecting groups in organic synthesis? सर, ताकि हम अपना टारगेट प्रोटेक्टिंग ग्रुप जिसको हम चेंज करना चाह रहे थे तो उसको करें, और जो मॉलिक्यूल में दूसरा जो मौजूद होता है वो ना हो. फॉर एग्जांपल अगर हम अमीन को करना चाह रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो ही उसके साथ हो जाए. Yes, you're right. So let me show you an example. For example, let's see this molecule. It has a lot of functional groups. This is just a hypothetical molecule. Try to understand that usually during organic synthesis we don't face this type of complex problem. The problem is a lot simpler than this one. If you see in this molecule, we have a carboxylic acid, then there is amine, then there is alcohol, then we see here aryl, ether, and then aldehyde functional group, ketone, thiol, ester. If we have this type of molecule and we want to do some change in this molecule, then there are a lot of competing functional groups which are going to compete, which are going to react. If we are trying to do a reaction here, then maybe other functional groups will also participate in the reaction, and as a result, what are we going to get? We will get a mixture of compounds. Because every functional group has the ability to react under the similar conditions. Some functional groups will react a lot faster than the others. Those who will react slowly will give us less side product, and those functional groups which will react fast, they will give us more product, major product with the reaction mixture. Therefore, for similar type of molecules, or in a molecule, if we have more than two functional groups, in that case we must use protecting strategies, protecting groups to avoid
simultaneous reaction on different reactive sites. So the question is, how can we selectively transform one functional group in the presence of many reactive sites? Of course, we need to use protecting groups. Here you will see multiple functional groups with similar or competing reactivity. Reaction may occur at unwanted sites. There is poor selectivity and low lead issue in this case, and complexity in multi-step synthesis. Therefore, we will adopt a strategy. We will use orthogonal protection strategy. We will see in the later slides that what is orthogonal protection, why we need to use this strategy. And keep in mind, we use this type of orthogonal protection strategy a lot in carbohydrate chemistry, in sugar chemistry. Sugar chemistry is considered average of chemist, one of the most difficult field of chemistry. And sugar molecules involve a lot of protection and deprotection strategies. So what is protecting group? What is the definition of protecting group? It is a molecular framework that is introduced on a specific functional group in a polyfunctional molecule. Like I have seen you in the precedent slide, that is a molecule which has a lot of functional groups to block its reactivity under reaction conditions needed to make modifications elsewhere in a molecule. So this is the definition of protecting groups. For example, we have this functional group. We want to do the change here. ये आपके पास वो है cells हैं, cells काम नहीं कर रहा. So we want to do a changing here, modification here. Let us assume, but here in this molecule we have another functional group. What we will do? We will do the protection. In other words, we will do the masking of this functional group. Alcohol will be converted into an ether with the help of a protecting group. So we have masked this functional group, and now we will do the desired transformation on this side. So selective reaction on the other side, and afterwards we will remove this protecting group, and in this way we will regenerate this functional group to further work on this side. Because if we try to do the reaction without protecting this functional group, then we will always get a mixture of compounds. In the reaction mixture, some products will have a reaction here, some molecules will have a reaction here. So we will get a mixture. And in some cases, we will have a reaction on both sides. So in this case, we will get a mixture of 3 molecules. If we don't protect it, then we're going to get a mixture of 3 type of products. One with reaction here, the other with reaction here, and one product with reaction on both sides. And there can be the 4th product also. Can you guess what will be the 4th product? It can be In the reaction mixture? dehydration can be also possible. No, we are not thinking in that term. What's the possibility? So the starting material. Yeah, starting material, you're right. So, in the reaction mixture, we will have the starting material as well. So, see, it has only 2 sides and it is going to give us 4 products in the reaction mixture. This is a tricky situation. And if there are 3 functional groups, or if there are 2 OH, then of course we are going to get a lot more products in the flask. Therefore, in complex or advanced organic synthesis, we always use protecting groups to mask some reactive sites and then do the reaction on the other side.
अच्छा सर जब हम उसमें प्रोटेक्शन और डीप्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे, जिस जगह पे हमने चेंज कर लिया है वो वहाँ पे फंक्शन ग्रुप हमने अपनी मर्जी का अटैच कर दिया है। जब हम डीप्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी को यूज़ करेंगे वो फंक्शन ग्रुप पार्टिसिपेट नहीं करेगा। No. Therefore, protecting groups are designed in such a way, chemist ने historically protecting groups इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि जब आपने एक तरह लगा दिया, आप अपनी केमिस्ट्री करें on that pH. Protecting groups are sensitive to pH. Keep in mind. तो आप you will decide it carefully and intelligently that I have to do the reaction here and this reaction need this pH, so I will put a protecting group which doesn't deprotect on that pH. You understand? Yes. So once we have done our chemistry and then we simply change the pH to get rid of that protecting groups. This is all game of pH, mostly in the lab. So, why are protecting groups needed? To achieve the chemoselectivity and then prevent the side reaction, enable us to do the complex synthesis and improve the efficiency and facilitate the compatibility. These are the basic goals of using the protecting groups. Without protecting groups, you cannot do the advanced synthesis. It's not possible. So, an ideal protecting group should be easy to install. आसानी से लग जाए. It should not be a complicated organic reaction to do the installation of protecting groups. Usually the installation of protecting groups is very easy. But keep in mind, in most of the cases you need the inert atmosphere. You need a Schlenk line to do the protecting group chemistry. Without Schlenk line, in most of the cases you cannot do the protection under argon atmosphere. It should be stable under those reaction conditions. It should be stable under reaction conditions. We will see what do we mean by stability. Sometimes हमें reaction basic pH पे करना होता है एक जगह के ऊपर, तो हम वहाँ पर एक ऐसा protecting group लगाते हैं जो basic medium में stable हो. जिस तरह बॉब है, बॉब protecting groups हम अमीन के ऊपर लगाते हैं. Why? Because next step we are going to do it in basic environment. Triethylamine use करने जा रहे हैं या pyridine use करने जा रहे हैं. We are going to use pyridine, diisopropyl, ethylamide, इस तरह के other organic bases use करने जा रहे हैं. In that condition, we use the OC as a protecting group for amine. So we can easily do our reaction. Once we complete our reaction, then we change the pH. By changing the pH, we can easily get rid of OC. We just change the reaction medium pH. So, तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए प्रोटेक्टिंग ग्रुप की? इट शुड बी इजी टू रिमूव. आमतौर पे जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स लगाते हैं, द रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज अ क्वांटिटेटिव रिएक्शन. यू जस्ट चेंज द पीएच और आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स खड़ा हो जाता है. ठीक है. कैटलिस्ट चाहिए होते हैं इसके लिए, स्पेशलाइज्ड हाइड्रोजन गैस चाहिए होती है, पास इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है. पास आपको यू नीड डिफरेंट pH conditions and then you can easily get rid of protecting groups. There are these conditions. It should be easy to install. Protecting group should be stable under reaction conditions, and then it should be easy to remove. And it should be orthogonal. Orthogonal means हम इसे selectively remove कर सकें in presence of other protecting groups in a molecule. It is not necessary that we have one protecting group in a molecule. For example, we are doing an organic transformation with a molecule which has lot of function groups inside it.
And for different functional groups, we have used different protecting groups. अब हम एक को रिमूव करना चाहते हैं तो दूसरे ना रिमूव हो उस कंडीशन के ऊपर. Therefore, we prefer those protecting groups which can be removed with the help of a catalyst. कुछ protecting groups हैं जो सिर्फ pH को अप डाउन करने से रिमूव हो जाते हैं और कुछ एक स्पेसिफिक कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिमूव होते हैं. आपके पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें 4 तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं. OH भी है, कार्बोक्सिलिक भी है, आपके पास अमीन भी है. That is a quite normal problem in advanced organic synthesis. तो उसमें आप 3 डिफरेंट किस्म के प्रोटेक्टिव ग्रुप्स लगाएंगे. अब आगे आपको अगला स्टेप करना है तो उस स्टेप के दौरान वो प्रोटेक्टिव ग्रुप्स रिमूव नहीं होने चाहिए रिएक्शन कंडीशंस पे. जब आपने अपना काम कर लिया तो मुझे इस फंक्शनल ग्रुप को टारगेट करना. आई हैव टू डू केमिस्ट्री ऑन दिस स्पेसिफिक अमीन प्रोटेक्टिंग ग्रुप. अब आप उसमें डी प्रोटेक्शन एजेंट डालेंगे और सिर्फ अमीन का प्रोटेक्टिंग ग्रुप रिमूव होना चाहिए. अदर प्रोटेक्टिंग ग्रुप शुड नॉट रिमूव अंडर दोस कंडीशंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड ऑर्थोगोनैलिटी. तो एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस डिजाइन करते हुए हम अंदर प्रोटेक्टिव ग्रुप नहीं लगाते. हमने आगे 8-10 स्टेप आगे का सोचना होता है. अच्छा, हमने ये चीज बनाने जानी है. यहाँ पर फिर आपका रेट्रोसिंथेसिस आ जाता है. ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस के लिए you with the help of retrosynthesis you first design the strategy and then you start working. In that strategy, what you do basically, you decide different types of functional groups for a molecule in such a way that you can get rid of each functional group one by one without affecting the other protecting groups on a molecule. So orthogonality is very important, and then it should tolerate a wide range of reaction conditions. Your protecting group should, and there are a lot of protecting groups available for organic chemists. More than 100 protecting groups are there. More than 100 different types of. In my lab, we have, I think, around 35 protecting groups available. So, different types of protective groups we use. इसके साथ हम अप्लाई करते रहेंगे. And the protecting deprotection strategy should generate minimal waste and step economical. Waste कम जनरेट होना चाहिए. ये ना हो कि आप प्यूरिफिकेशन में क्या करके बहुत सारा साल्वेंट यूज कर रहे हैं. वेस्ट कम जनरेट होना चाहिए उससे. This is also very important. So, an ideal protecting group should have all these characters. So why do we need the protecting groups? देखें, आप यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना चाहते हैं. ये मॉलिक्यूल है. अब यहाँ पे एक और फंक्शनल ग्रुप है. देयर इज अनदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड. दिस इज एन अदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड. और यहाँ पर आपका साइक्लिक कीटोन है. न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेंगे. आप यहाँ पे अटैक करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो क्या करता है, यहाँ ये दे देता है. आपका न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लग गया. यहाँ लगने की वजह से क्या करेंगे? What you will do? First you will protect this functional group, and then you will do the reaction. अब इसके पास और कोई जगह नहीं है रिएक्ट करने की. It will come and react here, and then you will get this product. Let's see classification. Alcohols and phenols के लिए जो protective groups use होते हैं, mostly silyl ethers. We use the different types of silyl ethers and benzyl ethers. TMS chloride, TPPS chloride, ये सारे आगे आ रहे हैं. TPPS chloride हो गए हैं. ये मुख्तलिफ किस्म के silyl ethers हैं. 10-12 किस्म के मार्केट में अवेलेबल है. So, depending on
your next steps you choose a specific CI ether. अमीन प्रोटेक्टिव ग्रुप्स मेजर जो है बोक और एलोक है, ठीक है। ये आपका एलाइल ब्रोमाइड जो यहाँ पे आके रिएक्ट करता है, और ये मोस्टली बॉक एनहाइड्राइड यूज होता है इस काम के लिए। और ये आपका बॉक ग्रुप है, ये सारा बॉक ग्रुप है, और ये आपका एलोक ग्रुप है। दिस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट अमीन। These are the major protecting groups. Then for carboxylic acid, we mostly use methyl ester or benzyl ester. Methyl ester pH change करने से you can get rid of this ester, और benzyl ester ये ester pH से नहीं जाता. You need polarium catalyst. Either polarium based catalyst with hydrogen. Then you can get rid of this one. ये सारी कंडीशनें we are going to see it in the next coming stages. थायोल ये भी बहुत ज्यादा मिलता है ना ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस में। We use ट्रिटाइल ग्रुप, little bit explosive to work with। ट्रिटाइल थोड़ा सा dangerous है, and then we use thioesters. So these two are the major protective groups. Of course सिर्फ ये दो के ऊपर जिंदगी नहीं खत्म हो जाती, हाँ हर एक के आगे lot more protective groups हैं। And if we talk about types of protective groups, yeah. सर पीछे हमने प्रोटेक्टिंग ग्रुप की कैटेगरी पढ़ी है। पहले का भी वही काम Based on function groups. या सर पहले का भी वही काम है, दूसरे का भी वही काम है, यानी कि वो भी प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे थायोल को प्रोटेक्ट करना है या अमाइन को प्रोटेक्ट करना, पहला बॉक भी प्रोटेक्ट करेगा, अलोक भी प्रोटेक्ट है। हमें फिर अलोक की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि अगर बॉक प्रोटेक्ट कर रहा है तो सेकंड की क्यों जरूरत पड़ेगी? देखें, हम अगर एक रिएक्शन लगा कर रहे हैं एक ऐसी कंडीशन के ऊपर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट और अमीन को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो आप वहाँ बॉक नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एसिडिक पीएच के ऊपर बॉक कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाता है। वहां पे यू हैव टू यूज एलोक। एलोक आप पीएच चेंज करके नहीं हटा सकते, आपको कैटलिस्ट चाहिए उसके लिए, हाइड्रोजन गैस चाहिए, ठीक है। यू कैन गेट रिड ऑफ एलोक विद अ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट से क्लीनली रिमूव हो जाता है, आपको 100% प्रोडक्ट मिलती है। सर इसका मतलब ये है कि फिर ये हम भी डिसाइड करते होते कि हमने कौन सी स्टेप पे जाएंगे। हाँ, दिस इज कॉल्ड द ऑर्थोगोनल स्ट्रेटजी, ठीक है। ऑर्थोगोनैलिटी इसका नाम है कि आपको ये सोचना है कि मुझे अगले स्टेप पे किन कंडीशंस पर रिएक्शन करना है, एंड उसके लिए पिछले स्टेप पे मैं कौन सी प्रोटेक्शन लगाऊंगा कि वो वहां पे मुतासिर ना हो, ठीक है। मेरा यहाँ पे काम निकल गया और ये वहीं पे बरकरार रहे प्रोटेक्शन, और जब मैं अगले स्टेप पे जाऊंगा, अगले स्टेप पे फर्दर ये वाली कंडीशन है, ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चौथे स्टेप पे आई विल गेट रिड ऑफ दिस एंड आई विल स्टार्ट डूइंग द केमिस्ट्री ऑन दिस साइड। जैसे कि हम टोटल सिंथेसिस में स्टडी टोटल सिंथेसिस लेवल, दैट इज एन इंडिस्पेंसिबल टूल। You cannot do the total synthesis without protection, deprotection. Ask from Faizan or Anas. They have done recently almost completed the total synthesis of bacterial peptidoglycan subunit, and they have used extensive protection, deprotection. So, acid labile protective groups. Acid labile, they are cleaved under acidic conditions. BOC, TBDPS. तो tertiary diisopropyl silyl ether, TBDPS, और BOC, TMS क्लोराइड भी इसी कंडीशंस में आता है, ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड, TMS भी इसी में आता है। तो they are cleaved under acidic conditions. So base labile protecting groups, they are cleaved under basic conditions like FMOC, ALOC, solid phase peptide synthesis वाले FMOC extensively use करते हैं, उनके जो अमीनो एसिड्स हैं वो हमेशा FMOC लगे हुए आते हैं, and FMOC is cleaved under basic conditions. Similarly, hydrogenol cis removable protecting groups, they are cleaved by catalytic hydrogenation like benzyl group and then CBZ, or we said Z group also, इसका दूसरा नाम है Z,
carboxyl benzyl group. CBZ is abbreviation of carboxyl benzyl. Benzyl के साथ कार्बोनाइल ग्रुप होता है. Protective groups are selected according to functional reactivity, reaction compatibility and deprotection strategy. ये जैसे मैंने कहा है कि आपको अगले स्टेप के ऊपर नजर रख के डिसाइड करना होता है कि ऑन दिस स्टेज में कौन कौन से प्रोटेक्टिव ग्रुप्स लगाऊंगा जो अगले स्टेप्स में डिस्टर्ब ना. सो इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री की किन किन ब्रांचेस में आप प्रोटेक्टिव ग्रुप्स यूज करते हैं. व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री इन विच protecting and deprotecting groups are extensively used. We use them in natural product synthesis. Total synthesis के दौरान हम protecting groups extensively use करते हैं. Medicinal chemistry, we use protecting groups extensively during medicinal chemistry synthesis. Organometallic chemistry also employ protecting groups. And similarly, carbohydrate chemistry. Carbohydrate chemistry इसमें तो extensively use होता है because there are a lot of chiral centers involved. Stereochemistry. Stereochemistry को preserve करने के लिए reactivity selectively किसी site को लाने के लिए you have to use protecting groups. So these are the major branches of chemistry in which we use protection deprotection strategy. Of course, in peptide synthesis also we use protection deprotection, but mostly solid phase peptide synthesis is mostly confined to FMOC type of protection and then deprotection of FMOC group. So let's see. I have told you there are a lot of protective groups available in the market, more than 100. So hydroxyl group को protect करने के लिए आप methyl ether use करते हैं, and then deprotection conditions के हैं BBr3 या hydroiodic acid. These are very strong acids, and this protecting group is stable to base, nucleophile and oxidizing agents. सर जब हम स्ट्रॉन्ग बेसिड का टर्म यूज करते हैं तो सिर्फ ये जो स्पेसिफिक मेंशन एसिड्स होते हैं उसी के साथ होते हैं कि दूसरा नहीं करेगा. आपका HCl नहीं करेगा, आपका HCl नहीं करेगा. सल्फ्यूरिक एसिड will not be able to remove this methyl ether. ये स्टैंडर्ड कंडीशंस. Standard conditions. You need to have BBr3 in your lab or hydroiodic acid. Then you will be able to break down the methyl ether. ये देखना, ये methyl ether है ना, आपने कैसे से तोड़ना है. इसको तोड़ने के लिए आपके पास BBr3 चाहिए या hydroiodic acid. HBr भी नहीं करेगा. HBr भी नहीं करेगा सर. ओके. और फिर जैसे सिर्फ केमिकल लैब में रखना कमाल नहीं है. सीरियस एक्सीडेंट भी हो सकता है. ठीक है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके एक ड्रॉप आपके हाथ के ऊपर गिर गया ना, आप जिंदा नहीं बच सकते. ठीक है. तो आपकी इंस्टेंट बजा देगा, आपको कवर तक पहुंचा के छोड़ेगा फिर. ठीक है. Therefore, and similarly, fuming nitric acid, ये जो आप नाइट्राइल ग्लव्स यूज करते हैं लैब में, वो आग पकड़ लेता है उससे. ठीक है. The nitrile gloves which we use in the lab, fuming nitric acid, उसके ऊपर पड़ जाए, ऊपर आग पकड़ लेता है. ऐसे ही जैसे क्या कहते हैं, आपने वो डाला, पेट्रोल डाला है. ठीक है. So be careful. So methyl ether, we can get rid of BBr3 or hydroiodic acid. Ethyl ether also BBr3 or hydroiodic acid, and it is stable against base, nucleophile and oxidizing agent. Benzyl ether, अगर आपने benzyl ether बनाया हुआ है, then you cannot get rid of by using these conditions. आगे किसी स्टेप में आपको ये कंडीशंस यूज करनी है टोटल सिंथेसिस की, then you have to have DDQ, BCl3, hydrogen or Lariman charcoal, this type of catalyst.
पलाडियम एंड चारकोल 5% भी चल जाएगा, 10% वाला भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट और अंडर दीज कंडीशंस इट इज स्टेबल बेंजाइल ईथर। सिमिलरली फिनाइल ईथर, BBr3 और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और साथ थोड़ी सी लीड चाहिए, देन यू कैन गेट रिड ऑफ दिस वन। TMS ट्राइमिथाइल सिलाइल ईथर, ये फ्लोराइड आयन से ज्यादा है, ठीक है, फ्लोराइड आयन। टर्शियरी ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, TBAF, ठीक है, TBAF आपको डालना है। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स और फ्लोराइड्स के अगेंस्ट क्या है, ये स्टेबल है। डिफरेंट फ्लोराइड्स, लेकिन अगर आप उसके अंदर ये इनमें से कोई एक रिएजेंट डालेंगे तो ये आपका TMS उड़ जाएगा वहां से, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा और यू विल गेट द प्रोडक्ट क्वांटिटेटिवली मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और TBAF के अलावा बाकी तमाम फ्लोराइड stable. So these are the basic conditions which are needed to deprotect these type of protecting groups, and these are the protecting groups for hydroxyl. Carbonyl group, if you have carbonyl group in your molecule, then dimethyl ketal you can use it, and D प्रोडक्शन क्या है, सिंपल एसिटिक एसिड, या कोई सा भी एसिड डालें विद वाटर, यू कैन गेट रिड ऑफ डाइमिथाइल कीटल। इट मींस एसिडिक कंडीशंस चाहिए आपको, माइल्ड एसिडिक कंडीशंस, और इट इज स्टेबल अंडर बेसिक कंडीशंस, एंड दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज आल्सो स्टेबल अगेंस्ट ए न्यूक्लियोफाइल। सिमिलरली डाइऑक्सिलेन कीटल पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड and water in acetone, ब्रैकेट में सॉल्वेंट है आपका, बेस और न्यूक्लियोफाइल कंडीशंस में दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप इज स्टेबल। डाइमिथाइल एसीटल, ये कीटोन की प्रोडक्शन के लिए है, ये भी आपका क्या है, एक्वस एसिड, कैन माइल्ड एसिडिक कंडीशन कैन गेट रिड ऑफ दिस प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स, एंड इट इज स्टेबल अंडर बेसिक कंडीशंस आर विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और उसके चारों तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, लेट्स सपोज अगर हम उसमें किसी हाइड्रोक्सी ग्रुप को सिलेक्टिवली किसी एक पोजीशन पे प्रोटेक्ट करना चाहिए, देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम सिलेक्टिवली दो ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दें हाइड्रोक्सी और दूसरे दो ग्रुप के ऊपर रिएक्शन फर्दर रिएक्शन कैसे होगा? फैजान शुभ ये कह रहे हैं कि कोई मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर 4-5 OH ग्रुप्स लगे हुए हैं। सर उसकी पहले हम रिएक्टिविटी चेक करेंगे, किस कार्बन की किस हाइड्रोक्सिल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, उसके मुताबिक हम स्टिशियोमेट्री के फॉर एग्जांपल एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, यू हैव वर्कड विद दिस वन, मार्कर के दैट ये बढ़िया सर। लेट्स सपोज क्लेक्सरीन कहते हैं, क्लेक्सोरिन हाइड्रोक्सी फॉर हाइड्रोक्सी एसिड। we'll have a molecule like this. We see this molecule. How many OH? 4 OH, like you said. And then there's another functional group. Amine. So what we will do? If we want to do a reaction on this one, we have to do a reaction on this one. यहाँ तो बहुत सारे आपके ग्रुप्स हैं। First you will do the protection of this one. आप बॉक लगा लें इसको, हाँ अभी हमने देखा है, यहाँ आप एसिटाइल ग्रुप लगा लें, देखें हम बॉक नहीं लगाएंगे। Why? Because the protection of this group involve acidic environment, bॉक will get अलग हो जाएगा। हाँ आप अलग लगा लें या आप एसिटाइल ग्रुप लगा लें। And then next step में यहाँ पे बेंजाइल लगाएंगे। लेकिन मसला ये है कि it gives 2 anomers. जब आप बेंजाइल ग्रुप लगाने जा रहे होते हैं, it gives a mixture of alpha and beta anomer. आपको डायस्टीरियोमर मिलता है यहाँ पे। You have to control the reaction condition thermodynamically to get only one anomer. और उसमें मसला ये है कि जो बीटा एनोमर है उसकी डीप्रोडक्शन मुश्किल है बेंजाइल के साथ, that is tricky. अल्फा एनोमर इजीली डीप्रोडक्ट हो जाता है। So in the next step we will
जो OH है, ये वाला OH और ये बाकी जो they will not participate. Although this is very reactive in this molecule, हाँ, क्योंकि ये क्या है प्राइमरी OH है, इसको सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए ना, लेकिन जो कंडीशंस हम यूज करते हैं अंडर दोज कंडीशंस, फैजान क्या है कंडीशंस का यूज किया अल्कोहल और PTS से पैराटॉलिन एसिडिक एनवायरनमेंट will only get alpha and over. Okay, will only get alpha and over. And then in the next stage, what we do? Benzaldehyde dimethyl acetal और हम इसका प्रोटेक्शन कर देते हैं। 3-4 स्टेप में आपने ये सारे OH प्रोटेक्ट कर दिए, सारे फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्ट कर दिए, and then you have this OH free. और इसका रिएक्शन फिर आगे आप बेसिक एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये कार्बोनिल ग्रुप है। सर पिछले स्लाइड में हमने देखा कि हमारे पास एक अल्डिहाइडिक था और एक कीटोन था और हम रिएक्शन करवाना चाह रहे थे कीटोन के। अब हम ये यूज कर रहे हैं जो कि कार्बोनिल की प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, तो सर वो दोनों को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्टिविटी डिफरेंट है, समझे? Therefore, different protecting groups work differently on aldehyde and ketone. So first, आपको जो है ना पता होना चाहिए कि किस फंक्शनल ग्रुप के लिए मोस्टली कौन से प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स यूज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, डी प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी कंडीशंस चाहिए और अंडर विच कंडीशंस दे आर स्टेबल। ये बेसिक जो है ना आपको आइडिया होना चाहिए। So, कुछ सवाल? Any question? सर ये बेंजाइल एल्डिहाइड से आपने एक प्राइमरी अल्कोहल और एक सेकेंडरी अल्कोहल कहाँ पर? ये दोनों सेकेंडरी क्यों नहीं? सेकेंडरी ये तो दोनों सेकेंडरी नहीं, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो नीचे सेकेंडरी है। इधर ये रिएक्ट नहीं करता अंडर दोस कंडीशंस। सही, हम बेंजल एल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल टेम्पर्ड सल्फोनिक एसिड यूज करते हैं इन डाइहाइड्रेशन अंडर रिफ्लक्सिंग कंडीशंस। आपका बेंजल एल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल यहाँ पे आके लगता है। सही, तो वो जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो ये है। Use this molecule for protection of these two ones. सर हम बेंजल्डिहाइड यूज नहीं कर सकते? Yes, जिंक के साथ आप यूज कर सकते हैं, बट यू नीड द जिंक क्लोराइड, लेकिन यील्ड अच्छी नहीं है। और सर हम ये रीजन दे सकते हैं कि मतलब ऊपर 6 मेंबर रिंग बन रहा है और नीचे अगर ब्रोंज सेकेंडरी के साथ कर रहे हैं रिएक्शन तो 5 मेंबर रिंग बन रहा है, तो 6 मेंबर रिंग एज कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल। सही, वो 5 मेंबर के साथ हम प्रोटेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एसीटोन। सर पहले प्राइमरी वाला ज्यादा रिएक्टिव तो पहले रिएक्ट कर जाएगा, तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की वजह से वो थर्ड पे नहीं लग सकता जाके, वो फोर्थ पे लगेगा जाके। सही है, तो समझ आ रही है? एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस का टॉपिक है, ठीक है? वो लोग जो टोटल सिंथेसिस में इंटरेस्टेड हैं, एडवांस ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंटरेस्टेड हैं, उनके काम की चीज है। और जो बच्चे क्रेडिट आवर्स लेने के लिए आए हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है ये टॉपिक। सो see, this is how we protected it from everywhere. Now we have this OH free, and then we can start doing our chemistry on this side. Once we have done all different steps, in later stage we can remove these protecting groups all at once, or we can remove them one by one. If we have to do the chemistry here, and we don't want a chemistry here, then we will simply use TFA to get rid of this one. TFA, acidic conditions में ये दोनों OH free हो जाएंगे, और उसमें फिर ये ज़्यादा एक्टिव है। We can easily react on this one. सर इधर तो रिएक्टिविटी कंडीशन डिफरेंट थी। अगर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर जैसे कैलेक्स फ्लोरीन है
उसमें रिएक्टिविटी सारी साइड पे सेम है, अगर हम उसमें किसी सिलेक्टिवली जगह पे प्रोटेक्ट करना चाहें तो पॉसिबिलिटी है? देखें कैलेक्सरीन की केमिस्ट्री डिफरेंट है इससे। कैलेक्सरीन में आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें तो बस आपका मिक्सचर मिल जाता है, यू हैव टू सेपरेट दोस मिक्सचर्स। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में हम एक्सटेंसिवली प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी यूज करते हैं। देयरफॉर कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री इज कंसीडर्ड एवरेज ऑफ केमिस्ट्री। The most this molecule ring can be opened with TFA also. कौन सा मॉलिक्यूल? सर जैसे ये ईथर है, साइक्लिक ईथर फॉर्म में हाँ है, हाँ हाँ, it can be also opened with TFA, yeah. You know, TFA only works on this molecule. It doesn't work for every molecule. Any specific reason for the selectivity this just this selectivity? इसका क्या कहते हैं, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपको हेल्प करती है इसको सिलेक्टिवली, इसको बेंजाइलिडीन ग्रुप को रिमूव करने में। ज्योमेट्री के हिसाब से प्रश्न और भी है, जैसे अगर हमारे पास डायएक्सियल डायइक्वेटोरियल पोजीशंस हैं या वाइस वर्सा है, does matter for this यस, मैं वही कह रहा हूँ, ज्योमेट्री है ना, दोनों एक ही साइड पर, इसलिए इजीली प्रोटेक्ट भी हो जाता है बेंजाइलिडीन से। लेकिन अगर इसकी जगह के ऊपर आपके पास एक अदर टाइप ऑफ शुगर है, you cannot use this group for the protection. For example, ये जो है आपका इक्वेटोरियल जो है एक्सियल है, then protection and deprotection strategy change. So geometry helps a lot in protection and deprotection. अगर इसको हम आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो अपनी जो रिएक्टिव ग्रुप का वो कौन सा होगा? OH वाला होगा सर? फिलहाल तो हमारे पास यही है, बाकी तो सारे मास्क हुए हैं। अगर आप सिंपल ये मॉलिक्यूल प्रोसीड करना चाहते हैं, द मोस्ट रिएक्टिव दिस वन। सर तो हम पहले प्राइमरी को भी नहीं करना चाहते, हम उस तरफ काम नहीं करना चाहते ना, क्योंकि देखें नेचर में बैक्टीरिया में जो मॉलिक्यूल पाया जाता है ग्राम नेगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, उसमें आपकी फंक्शनलाइजेशन इस तरफ है। हाँ, डी लैक्टाइल लिंकर इस तरफ लगा हुआ है। अगर डी लैक्टाइल लिंकर हम इधर लगा लें तो मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। तो therefore if we want to do a chemistry in a specific direction, we must use protecting groups. Otherwise, without protecting groups, we will get a mixture of compound, or what we will get a reaction on a location which will make the molecule inactive. You got my point? Yes. So इस molecule में मसला ये है कि आपको इधर केमिस्ट्री चलानी है, then the molecule will be active. लोगों ने चला के देखी है इस तरफ की केमिस्ट्री, इस तरफ भी और इधर भी, और वो सारे मॉलिक्यूल इनएक्टिव थे, ठीक है। नेचर देखें, हम नेचर से हेल्प लेते हैं ना। कुदरत ने एक मॉलिक्यूल बनाया है दैट इज हाईली एक्टिव फॉर वैक्सीन्स और फॉर वैक्सीन एडजुवेंट एप्लीकेशंस, और इम्यून सिस्टम को आपका एक्टिवेट कर सकते हैं मॉलिक्यूल। देयरफॉर आपको जो नेचर ने जो चीज़ डिज़ाइन की है, आप उसको कॉपी करना चाह रहे हैं लैब में। सारी केमिस्ट्री आपके नेचर से आ रही है। रब ने जो चीज़ें बनाई हैं उन्हीं को देख के हम अंदाजा लगाएं, अच्छा इस डायरेक्शन में जो है मॉलिक्यूल इज हाईली एक्टिव, लेट अस मेक इट। सो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के लिए आप ईस्टर यूज करते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल ईस्टर यूज करते हैं, और थायो ईस्टर यूज करते हैं, ठीक है। ये जो सिंपल ईस्टर है, वी कैन गेट रीड ऑफ ईस्टर्स विद एसिडिक कंडीशंस और हाइड्रोजिनोलिसिस के जरिए। अगर बेंजाइल लगा हुआ है, you cannot use the acidic conditions. For benzyl group, you have to use a catalyst. Okay, and it is stable under strong conditions and reducing agents. Tertiary butyl esters TFA या HCl से जाएगा डाइऑक्साइड में, और बेस और न्यूक्लियोफाइल के अगेंस्ट ये स्टेबल है। थायो एस्टर्स RSH या बेस के जरिए, थायोन के जरिए क्या कहते हैं, RSH या बेस ऑफ पानी में, ठीक है, एक्वस कंडीशंस में, और रिड्यूसिंग एजेंट्स के अगेंस्ट थायोएस्टर्स जो हैं दे आर स्टेबल। अल्काइलाइड भी यूज कर सकते हैं सर, कार्बोक्सिलिक के केस में बनेगा तो वही ईस्टर ही बनेगा।
रिएक्शन देखें, रिएक्शन आपको क्वांटिटेटिवली नहीं मिलता, सबसे बड़ा मसला ये है। यू गेट ए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोटेक्टिव ग्रुप्स की जो बेसिक कंडीशन है ना कि जब आप प्रोटेक्टिव ग्रुप लगाएं यू गेट द प्रोडक्ट क्वांटिटेटिवली हाई यील्ड होनी चाहिए, आपकी 90% प्लस होनी चाहिए। अगर आपको 30-40% मिल रही है वो हाँ यू फेल द बेसिक कंडीशन ऑफ द प्रोटेक्टिव ग्रुप। एल्डिहाइड के लिए भी बहुत सारे यूज हो रहे हैं। डाइमिथाइल एसीटल, मिक्स्ड एसीटल, इमीन यूज होते हैं आपके। ये शिफ्ट बेस्ड रिएक्शन से बनता है इमीन। शिफ्ट बेस्ड तो सारे करना जानते हैं ना, शिफ्ट बेस्ड रिएक्शन तो सारा पाकिस्तान जा रहा है। हाँ, तो इमीन बनाते हैं आप उसके नतीजे में। यहाँ भी एल्डिहाइड मिल गया, कीटोन मिल गया, अमीन उसके साथ लगा दिया, हाँ, तो यू गेट इमीन। सो यू कैन गेट रिड ऑफ दीज प्रोटेक्टिव ग्रुप्स अंडर दीज कंडीशंस। ठीक है, तो सिमिलरली अमीनो ग्रुप, उसके लिए बॉग होगा, Z प्रोटेक्टिव ग्रुप यूज होगा या FMO प्रोटेक्टिव ग्रुप्स, और अंडर दीज कंडीशंस दे आर स्टेबल। डी प्रोटेक्शन के लिए आपको ये कंडीशंस, यू हैव टू हैव दोस कंडीशंस इन द रिएक्शन फ्लास्क, देन यू कैन क्वांटिटेटिवली रिमूव योर प्रोटेक्टिव ग्रुप्स। याद रखिएगा, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन हमेशा आपको क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट दे। और इसके लिए सल्फर हाइड्रोल ग्रुप के लिए हाँ ये प्रोटेक्टिव ग्रुप्स यूज होते हैं। और ये बेंजाइल थायोईथर्स जो हैं वो आमतौर पे मर्करी साल्ट से जाते हैं या MC पावर से जाते हैं। ठीक है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ये यूज होता है, और या कोई मर्करी साल्ट। यहाँ पर भी आपका मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड यूज होगा या मर्करी साल्ट। तो ये जितने भी क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव ग्रुप्स हैं सल्फर के, वो और अंडर दीज कंडीशंस दे आर स्टेबल। यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं विदाउट प्रेजेंस ऑफ अल्कीन, क्योंकि अल्कीन के प्रेजेंस में MCB2 रिएक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर हमारे पास इन केस अल्कीन है तो फिर ये चीजें नहीं यूज करेंगे, ये नहीं यूज करेंगे, कोई और स्ट्रेटजीज हो ऑफ कोर्स। तो या तो आप देखेंगे आप अल्कीन जो है ना लेटर स्टेज पे लें रिएक्शन में, रेट्रोसिंथेसिस पे आप मॉलिक्यूल में पहले सल्फर के साथ काम कर रहे हैं एंड देन यू जनरेट द अल्कीन ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। सो देखिए रेट्रोसिंथेसिस देन प्ले ए वेरी बिग रोल। जो प्लानिंग है वो प्लानिंग जो है ना 3-4 महीने ले जाती है। ठीक है, डिस्कशन करते हैं, लिटरेचर देखते हैं, अच्छा मैं ये प्रोटेक्टिव ग्रुप लगाऊंगा तो यहाँ इधर तो डिस्टर्बेंस नहीं होगी। हाँ, आप रीड करते हैं एंड देन इट टेक्स 3-4 months टू कम अप विद अ वायबल retrosynthetic analysis, and after that when you start the advanced synthesis or total synthesis, तो क्या होता है कि पता चलता है वो ये प्रोटेक्टिव ग्रुप तो ये भी नहीं दे रहा, ये तो लग ही नहीं पा रहा, चले दूसरा वाला लगा के देखते हैं क्योंकि कंडीशन तो सबकी सेम है। ठीक है, तो वो भी आगे हिट एंड ट्रायल होता है, मोस्टली काम करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात यू गेट अ सरप्राइज इन द लैब। अगर सरप्राइज ना मिलते हो तो फिर लैब में बनाने की जरूरत नहीं है ना, फिर तो हर काम हम घर बैठे कागज के ऊपर कर लें, कागज के ऊपर दिया ना, जस्ट यू राइट द रिएक्शन एंड पुट द एरर, यू गेट द प्रोडक्ट। But those people who are working in the lab, they know it very well. It's not easy to get the product. When you do the reaction, you always get a mixture of products. और वो जो 7-8 स्पार्ट आपको PLC में नजर किधर है प्रोडक्ट में से, ठीक है, तो लग पता जाता है, एक स्टेप करते हुए तबीयत साफ हो जाती है। हाँ, किससे? ये तो आपको वैसे ही है, जैसे ऐसी जगह बहुत सारे बच्चे जो हैं कैमरा से हेल्प लेते हैं, NMR आगे तो कैमरा हेल्प करता है, कैमरा बताता है, कुछ नहीं बताता, उल्टा आपको कंफ्यूज कर देते हैं। कैमरा भी तो NMR स्पेक्ट्रम देता है ना, हमेशा उल्टे देते हैं। हाँ, जो रियल NMR स्पेक्ट्रम है इट इज ऑलवेज डिफरेंट देन द कैमरा। तो कैमरा किससे हेल्प करता है, लेकिन अगर आप टोटली कैमरा के ऊपर रिलाई करेंगे देन यू विल मिजरेबली फेल इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। AI अभी बहुत टाइम चाहिए, AI आपकी बहुत सारी फील्ड्स को अलग कर देगा, लेकिन आपका ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर सकता है। डोंट वरी।
और आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो काम है उसको भी कहना है, क्योंकि these are स्केल, ठीक है, और वो नहीं सीख सकता। AI जो ना इजी डिजाइनिंग के लिए बेस्ट है कि इजी डिजाइनिंग चीज को डिजाइन आपको रेट्रो करके दे देगा, लेकिन देन यू हैव टू यूज योर ब्रेन, यू हैव टू यूज योर ब्रेन। देखिए साइंस फाइंडर इज डूइंग द रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ AI, बट इट इज नेवर परफेक्ट। टाइम लेगा परफेक्ट होने में। व्हेन इट विल बी परफेक्ट देन लैब में तो काम आपको करना है, ठीक है, वो AI तो आपको रिएक्शन में लगा के देगा ना। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं, एक अल्कोहल है और दूसरा आपके पास कीटोन है, एंड यू हैव टू डू द रिएक्शन हियर। किसका? ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन करना है आपको। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको यहाँ लगाना है। यू विल प्रोटेक्ट दिस पार्ट, हाँ, यू विल प्रोटेक्ट दिस पार्ट फर्स्ट। अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। एब्सोल्यूट प्रोडक्ट तब कभी नहीं मिलती, हमेशा मिक्सचर मिलता है। थोड़ा सा रिएक्शन इधर हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया, फिर दोनों के ऊपर भी हो गया, वो वाली भी प्रोडक्ट मिलती है, और स्टार्टिंग मटेरियल भी मिलता है। कम से कम 4 स्पार्ट होंगे आपके पास, 5वां स्पार्ट भी होगा, ये भी मौजूद होगा, ठीक है। और स्टार्टिंग मटेरियल व्हिच यू गेट फ्रॉम द सप्लायर, दैट्स आल्सो समटाइम्स यू गेट 80%, 85%, 90%, it also contains 10-15% impurities। उनके भी स्पार्ट लगाते हैं आपको TLC पे। Therefore, आप में से जिन्होंने भी ऑर्गेनिक लैब में रिएक्शन लगाए हैं, जब TLC लगाते हैं तो कितने स्पार्ट लगाते हैं? बहुत सारे आते हैं ना। तो आप those possibilities play in the reaction flask, therefore you get lot of products। तो आपको ये ग्रुप प्रोटेक्ट करेंगे। अब आपने पॉसिबिलिटीज ऑफ साइड रिएक्शंस रिड्यूस कर दी, एंड नाउ यू विल गेट ओनली रिएक्शन हियर। और वो भी क्लीनली नहीं देता, याद रखिएगा, ठीक है, क्लीनली फिर भी नहीं मिलता आपको, जिससे भी एक ही प्रोडक्ट मिले, इट्स नॉट पॉसिबल। रिएक्शन नेवर गोज टू क्वांटिटेटिव कंप्लीशन इन ऑर्गेनिक लैब, एब्सोल्युटली कंप्लीट नहीं होता रिएक्शन कभी। और फिर जब आपने एक दफा यहाँ पे काम कर लिया, देन यू विल गेट रिड ऑफ प्रोटेक्शन टू गेट this। यहाँ देखें क्या करेंगे, देखिए पहले लेट्स एनालाइज, देयर आर मेनी फंक्शन ग्रुप्स हियर। OH निकाल के रखा, OH और दूसरा कीटोन, एक OH इधर भी है। अगर तो आपको यहाँ पर रिएक्शन करना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करना है, देन यू हैव टू प्रोटेक्ट दिस टू। बेंजाइल ब्रोमाइड यूज हुआ यहाँ पर, बेंजाइल ब्रोमाइड आप यूज करेंगे सोडियम हाइड्राइड के साथ। ये देखेंगे बेंजाइल क्लोराइड यूज कर, बेंजाइल क्लोराइड यूज कर लेंगे, बेंजाइल ब्रोमाइड यूज कर लेंगे। बेंजाइल ब्रोमाइड रिएक्ट लॉट फास्टर देन बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड की रिएक्टिविटी स्लो है, बेंजाइल ब्रोमाइड की फास्ट है। या फिंकरस्टाइन रिएक्शन यूज करें आप, इन सीचू बेंजाइल आयोडाइड बना लें, पोटेशियम आयोडाइड डाल दें रिएक्शन फ्लास्क के अंदर, जिसके अंदर आपने बेंजाइल ब्रोमाइड डाला हुआ है, ऊपर से पोटेशियम आयोडाइड डाल दें एसीटोन सॉल्वेंट के अंदर, तो आप इन सीचू बेंजाइल आयोडाइड बना लेते हैं, और इट रिएक्ट्स वेरी क्विकली एंड वेरी फास्ट। तो ये आपके दो प्रोटेक्टिव ग्रुप्स आ गए यहाँ पर, एंड देन यू विल डू ग्रिग्नार्ड रिएक्शन विद दिस, और आप BCl3 यूज कर लें, या प्लाटियम चारकोल और हाइड्रोजन यूनिवर्सल कंडीशन है बेंजाइल ग्रुप को रिमूव करने के लिए। ये कैटलिस्ट चाहिए आपको, प्लाटियम बेस्ड और हाइड्रोजन गैस चाहिए। इट कैन क्लीनली रिमूव दिस टू प्रोटेक्टिव ग्रुप्स एंड यू विल गेट 100% product most of the cases. In our lab, we never get less than 95% yield after filtration और ये सब कुछ करने के बाद mostly हमारी yield जो है quantitative होती है whenever we remove benzyl groups। ये दोनों एक साथ प्रोटेक्ट करेंगे या? हाँ दोनों एक देखें, दोनों OH है ना, आप चाहते हैं कि दोनों जो है ना पार्टिसिपेट ना करें आगे। हाँ
यहाँ हमारे पास सोडियम हाइड्राइड यूज किया गया है जो कि also will Strong base. the alpha hydrogen we have enolization process. Yeah. Then can be also alkylated. हाँ, लेकिन देखिए वो भी ये वो रिएक्शन कंडीशंस हैं जो लैब में देखें, थ्योरेटिकली तो बहुत सारे रिएक्शन हो सकते हैं, ठीक है, ऑन पेपर these are those reactions which have been validated in the lab. Published literature का ये रिएक्शन है. Percentage is somehow incorrect because reactions high reactivity base has to abstract the proton. हाँ. Easy accessibility proton, easy deprotonation. हाँ, आप ये रिएक्शन पोटेशियम कार्बोनेट के साथ ही कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा माइल्ड बेस यूज कर रहे हैं, लेकिन लिटरेचर में उन्होंने सोडियम हाइड्राइड रिपोर्ट किया हुआ है और मेरा ये ख्याल है कि सोडियम हाइड्राइड से यील्ड आपकी थोड़ी सी कम आएगी. पोटेशियम कार्बोनेट विल गिव यू अ बेटर यील्ड और deprotonation उसमें नहीं होगी, या enolization नहीं होगी. या उससे भी आप थोड़ा सा वीक बेस यूज कर लें, सोडियम कार्बोनेट का लें, सोडियम कार्बोनेट बेस्ट हो सकते हैं. सही है. तो बेसिस भी डिफरेंट किस्म के हम लैब में यूज करते हैं, लिथियम कार्बोनेट हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, फिर साइज के हिसाब से इनकी जो है ना बेसिसिटी हाँ चेंज होती है. Another example, ये देखें, आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है और ये है टेट्राहाइड्रोपाइरेन यूज हुआ है इस अल्कोहल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके लिए एसिटिक हाइड्राइड यूज किया विद ट्राइथैलेमीन. तो ये हुआ आफ्टर 7 स्टेप्स आपने यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रोड्यूस कर लिया और फिर QH यूज करके आपने ये ग्रुप रिमूव कर लिया. हाँ, ईस्टर जितने भी हैं आमतौर पे एसिड हाइड्रोक्सिस या बेस हाइड्रोक्सिस से आप उन्हें रिमूव कर देते हैं. ये एसिटल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म. डायोल आप यूज करते हैं उसके लिए, और ये जो ग्रुप है ये इस तरह प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है. डायोल जो है आपका यहाँ से लग गया, लेकिन ये कैसे बना है अंडर एसिडिक कंडीशंस. दिस विल अटैक हियर, ये आपका ऊपर जाएगा, आपका हेमी एसिटल बनेगा और हेमी एसिटल से आपका जो कीटोन है कंप्लीटली यहाँ पे प्रोटेक्ट हो गया. एंड देन एक्सोनियम आयन नहीं क्या कहते हैं, ये हुआ रीअरेंजमेंट हुई और आपका ऑक्सोनियम और एडेंट ये प्रोटेक्शन हो गया. तो ये आपकी फाइनल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट है. डिप्रोटेक्शन, आप पिरिडीनियम हाइड्रोसाइलेट या HCl इन द मिक्सचर ऑफ वाटर, ये इसकी टिपिकल कंडीशंस हैं. अंडर दीज कंडीशंस you can get rid of this group. You get ethylene glycol और अपना कीटोन आपको वापस मिलेगा. और ये क्वांटिटेटिव रिएक्शन है, usually you get the product quantitatively. Similarly benzyl production, बेंजाइल ग्रुप भी आपके अल्कोहल की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन जहां पे भी बेंजाइल यूज होगा कैटलिस्ट चाहिए आपको रिमूव करने के लिए, और इट विल नॉट गो इजीली. So in the previous slide, एक प्रोटेक्शन और डिप्रोटेक्शन के लिए एसिड यूज हुआ है दोनों के लिए. तो सर ये नहीं हो सकता मतलब कि प्रोटेक्शन हो जाए एट द सेम टाइम वो डिप्रोटेक्ट. देखें, आप जो एसिड्स हैं ना डिफरेंट टाइप्स यूज करेंगे. एक डिप्रोटेक्शन के लिए टोसाइलेट बेस आप एसिड यूज करेंगे, ठीक है, और बाकी जो एसिड्स हैं तो चल जाते हैं उसमें. मैं आगे दिखा रहा हूँ आप लोगों को एक पैलेट जिसमें डिफरेंट कंडीशंस लिस्ट हैं. किस पीएच के ऊपर ये ग्रुप दिस विल स्टे स्टेबल और किस पीएच के ऊपर ये ग्रुप जो है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. तो देखिए, एक जो प्रोटेक्टिव ग्रुप्स है वो डिफरेंट पीएच के ऊपर बास का स्टेबल होता है, लेकिन पीएच जैसे ही
एसिडिक में बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है 1 pH, तो यू कैन नॉट मेक इट स्टेबल, आपका प्रोटेक्टिव ग्रुप्स एलिमिनेट हो जाता है। अच्छा, बेंजाइल ग्रुप की जो कॉमन कंडीशंस हैं, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, बेंजाइल ब्रोमाइड आप यूज करते हैं डीएनएफ में, और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन है, मोस्टली प्लस 90% हीट होती है इस रिएक्शन की, एंड यू गेट एन ईथर लाइक दिस, बेंजाइल ईथर। और बेंजाइल ईथर को रिमूव कैसे करेंगे? कैटलिस्ट HBr यूज करें, या HBr हम कम यूज करते हैं क्योंकि लैब में 49% 45% अवेलेबल होता है। HBr itself is a gas. For this you need to have highly concentrated HBr जो easy और quantitative yield देता है बेंजाइल के साथ, वो palladium and charcoal 10% और 5% with hydrogen, उसकी जो yield है आपकी quantitative होती है रिमूवल की। और आपका जो बेंजाइल है वो टालुइन बन के, टालुइन की रोटरी जो साइड प्रोडक्ट आपको ला दिया, आप ये प्रोडक्ट मिल गए। एल्गैट यूज कर सकते हैं, एसिड यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या कहते हैं लैब में जो प्रैक्टिकली अगर आप पढ़ें क्या कहते हैं टोटल सिंथेसिस, उसमें मोस्टली प्लाज्मा चार्कोल यूज हो रहा है बेंजाइल की रिमूवल के लिए। हाइड्रोजन और प्लाटिनम और चारकोल, ये डिफरेंट सॉल्वेंट्स यू कैन यूज। टिपिकल सॉल्वेंट्स इन्वॉल्व मेथनॉल, एथनॉल, एथिल एसीटेट, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये उसका क्या है कंडीशन है, प्लाटिनम इंसर्शन के जरिए आप ये देखें बेंजाइल ईथर है, प्लाटिनम कैटलिस्ट डालते हैं तो वो इंसर्ट हो जाता है यहाँ पर, एंड देन विद हाइड्रोजन एक्सेस ये रीअरेंजमेंट होती है और आपका अल्कोहल फ्री हो गया और अपना कैटलिस्ट आप जनरेट कर लेते। यूजुअली 5.1 मोल इक्विवेलेंट सफिशिएंट है इस रिएक्शन के लिए, या 0.05 मोल इक्विवेलेंट, और स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है कैटलिस्ट की इस काम के लिए। सर एक क्वेश्चन इस कंडीशन में भी अगर हमारे पास अल्कीन है, उसके लिए रिडक्शन में हाइड्रोजन पॉसिबिलिटीज होते हैं, ऐसे होती है। देखिए इसीलिए ऑर्थोगोनल स्ट्रेटजी यूज की जाती है ना, जैसे पीछे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई कि उसने अल्कीन लेटर स्टेजेस पे जनरेट कर लिया, पहले सारी प्रोटेक्शन कर ली जो केमिस्ट्री उसने करनी थी, चेन को एलांगेट करना था कर लिया, एंड देन लेटर स्टेजेस के ऊपर अल्कीन जनरेट कर लिया। डिप्रोटेक्शन प्रोसेस में भी अगर हमारे अल्कीन रिड्यूस हो जाए, वो भी एज इफेक्टिव या कैरल सेंटर भी जनरेट कर सकते हैं, वो भी यूनिट में हिंडर करते हैं। इसलिए देखें प्लानिंग रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस व्हिच टेक्स सिग्निफिकेंट टाइम, रेट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के बाद यू स्टार्ट वर्किंग इन द लैब, और फिर जो रिएक्शंस हैं वो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं चलते, ठीक है, they don't work as you are expecting, therefore हमें जो है ना टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी या प्रोटेक्टिव ग्रुप्स चेंज करने होते हैं। बॉक बड़ा मशहूर प्रोटेक्टिव ग्रुप्स है, प्रोटेक्टिव ग्रुप है, बॉक टर्शियल ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल प्रोटेक्टिव ग्रुप। ये किस फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं सिर्फ अमीन के लिए, और आप मोस्टली बॉक एंड हाइड्राइड यूज करते हैं। एलोक तो वो भी यूज होते हैं लेकिन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। बॉक एंड हाइड्राइड THF और रूम टेम्परेचर पे इजीली आके अमीन को लग जाता है, और इसका जो है मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट सेम है। पीछे आपने देखे अमीन है ये, और उसके नतीजे में आपकी बाई प्रोडक्ट्स ये बनते हैं, ठीक है, और इसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है, टर्शियरी ब्यूटानॉल है। आपने जब लगा लिया रोटरी के ऊपर, आप जब वो क्या कहते हैं रन करते हैं अपनी आरडी, तो साइड प्रोडक्ट सारी आप उड़ा देते हैं, और पीछे आपको बॉक प्रोटेक्टेड प्योर प्रोडक्ट मिल जाती है। और रिमूवल के लिए HCl आप यूज करेंगे, या अच्छा ये एक और कंडीशन है, ठीक है,
ट्राइथैलेमीन भी बाज़ वक़्त यूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली हमें ज़रूरत नहीं पड़ती ट्राइथैलेमीन की, ईजिली लग जाता है बॉक। और उसका मैकेनिज्म है, ठीक है, कि ये इस मैकेनिज्म के थ्रू आपका क्या कहते हैं बॉक प्रोटेक्टेड अमीन लिया। डीमैप भी लोग यूज कर रहे हैं बॉक। देखें अमीन जो है ना सारे रिएक्टिव नहीं होते, बाज़ वक़्त अमीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो आपने सिंपल बॉक डाला, हाँ, you have added simple BOC and hydride and THF and you get the protection of amine. But sometimes amine is engaged, the protons of amine are engaged with neighboring carboxylic group, hydrogen bonding में. Then on that amine you cannot install BOC easily. Therefore you have to use some strong base like DMAP, diazo. ये क्या है? डीमैप, डाइमिथाइल अमीनो पिरिडीन, डीमैप बड़ा मशहूर बेस है। और डीमैप से जो प्रोडक्शन मैकेनिज्म है जिससे लाइक ट्राइथैलेमीन, और एट द एंड यू गेट दिस प्रोडक्ट। डी प्रोडक्शन यू यूज विद HCl एंड डाइअल्सेन और HCl विद मेथनॉल। ये वो वाला HCl नहीं जो लैब में होता है 37%, नो, दैट इज अनएबल टू डू दिस डी प्रोडक्शन। मॉइस्चर नहीं आना चाहिए इस प्रोडक्शन में। यू हैव टू जनरेट द HCl gas. HCl gas will be dissolved in the methanol and then you can deprotect. ज़्यादा आसान ये है कि आप वो यूज करें, क्या कहते हैं TFA, ठीक है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड कैन इजीली remove the BOC protecting group and you get a product quantitatively. लेकिन उसमें एक और मसला है। क्या मसला है? There is a very big problem. कैसा? क्या प्रॉब्लम है? TFA आप यूज करते हैं तो HCl भी यही करेगा। उड़ाने का भी मसला है और दूसरा मसला ये है कि it gives you a salt, ठीक है, give you a salt। किसका salt देगा? आपने ये आपको इधर दो सीधे हैं सर, कार्बोनिक क्लोराइड। हाँ, एनहाइड्राइड है ना, ये बहुत एनहाइड्राइड है, सही है। तो जब आप इसको रिमूव करेंगे TFA से तो आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलेगा, ठीक है, और आपका ये टर्शी ब्यूटानॉल हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे साल्ट बनेगा TFA का। ये आपका नेक्स्ट स्टेप के रिएक्टिविटी को मुतासिर करता है। हाँ, वर्कअप करना पड़ेगा इसका। रिएक्शन ये क्वांटिटेटिव है, 100% आपको प्रोडक्ट मिलती है। HCl के साथ अमोनियम क्लोराइड है, तो फिर HCl बनेगा, मतलब हाइड्रोक्लोराइड साल्ट बनेगा। अमोनियम क्लोराइड साथ नहीं बनेगा अगर HCl के साथ क्या करेगा? अमोनियम क्लोराइड का अमोनियम क्लोराइड का साल्ट अगर HCl के साथ यूज करें वो तो सही है, लेकिन HCl यूज करना ज्यादा ट्रिकी है। आपको HCl गैस चाहिए, मॉइस्चर फ्री कंडीशंस, उसको डिस्टिल करना पड़ेगा। हाँ सही है, आपको HCl गैस प्रोड्यूस करनी पड़ेगी और HCl गैस विदाउट मॉइस्चर ज्यादा आसान जो है ना लैब में एक्सटेंसिविटी है, फिर आप यूज कर सकते हैं ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इस काम के लिए, लेकिन वो साल्ट देता है आपको TFA का। एट द एंड जो अमीन
you have to use an ion exchange resin to get rid of या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ टाइट्रेट कर लें. But there is another problem. क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन कर लें सोडियम बाइकार्बोनेट 10% के साथ. When you do the extraction of an amine, उसमें जो टेंडेंसी है वो एक्वस फेज में हल होने की है, ठीक है, वो पानी में चला जाता है. ऑर्गेनिक फेज में थोड़ी सी प्रोडक्ट आ गई, यू लूज द प्रोडक्ट. क्या करेंगे सर? ड्राई के एजेंट भी यूज कर रहे हैं, ड्राई करके. नहीं वो काम नहीं करता. आयन एक्सचेंज रेजिन यूज करना पड़ता है आमतौर से, ठीक है. आयन एक्सचेंज बॉब की प्रोडक्शन, ये उसका मैकेनिज्म है, ठीक है. ये देखें उसने आपको HCl के साथ किया है तो आपको ये साल्ट मिल गया है, ठीक है. हाइड्रोक्लोराइड साल्ट है ये अमीन का. TFA के साथ ये सेकेंडरी अमीन था. सेकेंडरी अमीन की आपने प्रोडक्शन की, आपका ये बॉब ग्रुप लगा हुआ है. TFA और DCM आपने यूज किया 50-50 और आपको ये मिल गया. ये इसका TFA का साल्ट, TFA भी लिखा है इसके साथ, ठीक है. TFA का साल्ट सर इन प्रोटीन केमिस्ट्री अगर हम देखें तो ज्वेटर आयन होता है, अमाइनो एसिड होते हैं. अगर हम एसिड डालते हैं मतलब उसको pH लो करते हैं तो फिर वो पॉजिटिव में चला जाता है. तो सर वो उस ट्रेंड में तो हम नहीं कर सकते क्योंकि फिर एफमॉक यूज करते हैं वहाँ पे ज़्यादातर, ठीक है. एफमॉक आपका पेप्टाइड केमिस्ट्री में एफमॉक ज़्यादा यूज होता है. तो ये उसका मैकेनिज्म है. ये देखें यहाँ पे आपका ये साल्ट बना के दिखा दिया उसने. ये साल्ट है और यू हैव टू फॉर द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू न्यूट्रलाइज इट फर्स्ट. मोस्टली डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन, अगर आप मॉलिक्यूल को देखें, इफ इट इज लिपोफिलिक एंड इफ हैज ओनली वन NH2 ग्रुप फ्री, ये जो है मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है. लेकिन अगर उसके अंदर ज्यादा पोलर ग्रुप्स मौजूद हैं then the molecule will go in water. ये CBZ प्रोडक्शन बेंजाइल की तरह है लेकिन जस्ट एक एक्स्ट्रा कार्बन आयल है इसमें. इसे हम Z प्रोडक्टिंग ग्रुप ही कहते हैं, कार्बोक्सी बेंजाइल ग्रुप. मतलब ये हुआ कि हम अमीन के लिए वो प्रोटेक्टिंग ग्रुप यूज करते हैं जिसमें कार्बोक्सी ग्रुप होता है. अमीन के लिए हाँ, आपका ये है ना, आपका क्या कहते हैं, इसमें भी है सर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप है ना, कार्बोनाइल ऑक्सी ग्रुप है, ठीक है. ये कार्बोनाइल ऑक्सी ग्रुप कहलाता है. और इधर भी आपका ये कार्बोनाइल ऑक्सी ग्रुप है, क्योंकि देखें ये सब की डीप्रोडक्शन एक ही मैकेनिज्म पे काम कर रही है. जैसे आप डीप्रोडक्टिंग एजेंट डालते हैं, ये जो है ना अनस्टेबल हो जाता है, ये CO2 बन जाता है, ठीक है. इसलिए प्रोडक्शन के दौरान आप RB को क्लोज करके नहीं रख सकते क्योंकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है तो RB फट जाती है, ठीक है. Therefore, we ask everybody to have the glasses in the lab, ठीक है. तो आमतौर पर जब भी रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो हम ऊपर से लीड हटा देते हैं. सर 2-arthrionic RB यूज कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? 2-arthrionic वाली RB कर सकते हैं, उधर से वो लेकिन बाद में आपको यू हैव टू रोटरी कवर भी तो लगाना है ना. 2 नहीं तो 3 नहीं तो आप कैसे लगाएंगे? तो देखें इसको क्लोरोफॉर्मेट ग्रुप भी कहते हैं, हाँ, कि क्लोरोफॉर्मेट ग्रुप भी कहलाते हैं. तो ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप अंडर दिस कंडीशंस, ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 कार्बन आप डालेंगे तो ये इजीली यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि ये क्लोराइड की शक्ल में होता है ना. ये जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है इसके अंदर क्लोराइड लगा हुआ होता है. तो आपको HCl रिमूव करना है यहाँ से, तो आप इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप इंस्टॉल कर लेते हैं. ये उसका मैकेनिज्म है और ये आपकी बाई प्रोडक्ट सिलेक्शन की. At the end you get this protected amine. Other condition, ये सक्सीनेमाइड भी आप यूज कर सकते हैं, ओसू, ठीक है. इसमें फिर आपको बेस यूज करने की जरूरत नहीं है, हल्का सा माइल्ड यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, लेकिन इस रिएक्शन की यील्ड अच्छी होती है. OSU ये क्या है? हाँ,
ये जो है आपका लीविंग ग्रुप है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। जब अमीन के साथ आप ओसू डालते हैं किसी भी प्रोटेक्टिव ग्रुप का, बहुत भी ओसू की हालत में मिलता है सक्सीनामाइड का, तो क्वांटिटेटिव रिएक्शन होता है इसका। क्या स्ट्रक्चर है OSU का? हाँ नहीं, बेंजीन नहीं है इसमें, बेंजीन नहीं है। हाँ देखें, ये प्रोटेक्टिव ग्रुप है आपके पास, कौन सा? लेकिन ये प्रोटेक्टिव ग्रुप किस हालत में मिलता है, या आपको मार्केट में इस शक्ल में भी अवेलेबल है, या आप इसे लैब में भी सिंथेसाइज करते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? ओसू। सही है। तो ये आपका ये वाला ग्रुप है, ये बड़े काम की चीज है, क्वांटिटेटिव रिएक्शन है। जस्ट आपने उसके अंदर ये डालना है, मॉलिक्यूलेंट मिला दें, प्रोडक्ट मिल गई आपको। फैजान इतना ही आसान है, लेकिन वो बनाना मुश्किल है ना, आपको ये बनाना भी तो है ना लैब में। एनॉक्साइड्स जैसे होते हैं, एनॉक्साइड्स उसी टाइप के भी हम अदर्स यूज कर सकते हैं कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो बेंजोलॉक्सी होना जरूरी नहीं है, पर हमारे पास अवेलेबिलिटी इसकी है तो ये हम कह सकते हैं। हाँ, ये कमर्शियली अवेलेबल है और सस्ते अवेलेबल है। मैंने आपको कहा ना शुरू में, देयर आर मोर देन 100 प्रोटेक्टिव ग्रुप्स अवेलेबल। There are more than 100 different types of protective groups. ये एक जो ना इनएक्साइड है। और दूसरा ये है कि लिटरेचर डाटा ये बताता है कि they have very good results in the lab. Reaction quantitative होता है, removal is easy, और removal के बाद आपको जो प्रोडक्ट मिलती है वो भी easily मिल जाती है, क्वांटिटेटिव मिलती है। हैंडलिंग थोड़ी सी ट्रिकी है, खुद से तजर्बे करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, ठीक है। तो किसी एक्सपीरियंस बंदे के साथ काम करेंगे, दैट इज इजी। तो ये जो है आपको इस हालत में मिलता है। पीछे हमने देखा था ये क्लोराइड की शक्ल में था। प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म, ये आपका ओसू आ गया, और एट द एंड प्रोटेक्शन हो गई उसकी। हाँ, ये लगा हुआ है, देखें, और ये इजीली और क्वांटिटेटिवली इस तरह के प्रोटेक्टिव ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है। कॉमन कंडीशंस, अब ये आसानी से नहीं जाता है, क्योंकि देखें आपको यहाँ देखने में तो नजर आ रहा है कि ईस्टर बांड है। हाँ, ईस्टर कॉमन सेंस यही कहते हैं ना, जो ईस्टर बांड है एसिड हाइड्रोलाइसिस या बेस हाइड्रोलाइसिस से यू कैन ब्रेक दैट फंक्शनल ग्रुप, बट यू कैन नॉट ब्रेक इट इजीली। यू नीड टू हैव कैटलिस्ट एंड हाइड्रोजन, palladium catalyst or hydrogen. Under these conditions you can get rid of। लेकिन जहां कहीं भी बेंजाइल आएगा ना, कीप इन माइंड कैटलिस्ट चाहिए आपको बेंजाइल को रिमूव करने के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड भी यूज हो जाएगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर। लेकिन HCl कौन सा? 37% वाला नहीं, जो लैब में आपका मिलता है वो क्या है? 33% और 37%। बकाया क्या होता है उसमें? हाँ, पानी है, ठीक है। HCl basically it is a gas. It is basically gas which has a tendency to dissolve itself in the water easily. वाटर को आप खुला छोड़ दें 3-4 दिन बीकर में HCl डाल के, तो all the HCl gas will run away and at the end you will get almost water.
लेकिन उसे पीने की जहमत ही करनी, ठीक है। डोंट ट्राई टू ड्रिंक इट, पहले चेक कर लें। बेंजाइल अल्कोहल की पॉसिबिलिटीज तो नहीं है ना बनने की? किसकी? बेंजाइल अल्कोहल की एसिडिक कंडीशन मुझे लग तो नहीं है एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। नहीं बनेगा, नहीं तोड़ेगा। हाँ पीछे से वो आपका क्या कहते हैं, टालिन बनाएगा ना, देखें वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा यहाँ पहले, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। प्रोटेक्टिंग ग्रुप से जितने भी यूज हो रहे हैं ना, क्लोरोफॉर्मेट टाइप, इसमें आपका कार्बन डाइऑक्सी ग्रुप मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जैसे आप कंडीशन चेंज करते हैं मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, और पीछे आपको टॉलिन बचता है, और टॉलिन आप रोटरी से निकाल देते हैं और यू गेट योर प्रोडक्ट क्लीनली। कोई साइड प्रोडक्ट्स नहीं, कोई प्यूरिफिकेशन नहीं है, कोई कार्बन क्रोमेटोग्राफी नहीं है। डीप्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड से आप कर सकते हैं, लेकिन क्लाडियम एंड चारकोल इज द बेस्ट। एटलीस्ट हमारी लैब का यही एक्सपीरियंस है, हमने डिफरेंट कंडीशन अप्लाई करके देखी। एट देन वी कम टू द कंक्लूजन दैट 5% or 10% palladium and charcoal is the best catalyst to get rid of benzyl protecting group. Mechanism, under this mechanism or at the end अगर आपने strong acid यूज किया है, देखें एक नया मसला खड़ा हो गया, आपको साल्ट मिल गया, ठीक है। अब आप रिएक्टिविटी रिस्टोर करने के लिए यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट साल्ट, और उससे आपकी यील्ड मुतासिर होती है। देयरफॉर व्हेन आई से प्लाटिनम एंड चारकोल इज द बेस्ट, लेकिन प्लाटिनम एंड चारकोल में कुछ और इश्यूज हैं, ये इजीली आग पकड़ता है, सबसे बड़ा मसला इसके लिए, ठीक है। आपने जब आरबी डाला, जब मेथनॉल डाला, फौरन आग लग जाती है। 2-3 दफा तो आग मेरी लैब में लग चुकी है, सही है। तो वी वर एबल टू कंट्रोल इट। प्लाटिनम एंड चारकोल की स्टेबिलिटी क्या कहते हैं, पायरोफोरिक इन नेचर, उसके क्या है सेफ्टी इश्यूज हैं, लेकिन क्लीन प्रोडक्ट देते हैं आपको। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द यील्ड, यू गेट मोस्टली 100% यील्ड विद दैट एटलीस्ट। कोई सवाल? तो आज हमने क्या देखे, कौन कौन से प्रोडक्टिव ग्रुप देखे? अमीन के देखे, अमीन के कौन कौन से? बॉब देखा, और आलोक तो नहीं देखा, आलोक तो नहीं किया हमने। अच्छा जी, तो बेंजाइल ग्रुप का प्रोडक्टिव ग्रुप है, ये भी मुख्तलिफ किस्म के आपको मार्केट में अवेलेबल है। कहीं पे यहाँ पे क्लोराइड लगा हुआ है, कहीं पे यहाँ OH लगा हुआ है, कहीं पर कोई और ग्रुप लगा हुआ है, सॉल्युबिलिटी को वो करने के लिए, वेरी करने के लिए। तो मार्केट में डिफरेंट अवेलेबल है, तो उससे परेशान नहीं होना, लेकिन जो मेन फंक्शन और मैकेनिज्म सेम है इनके काम करने का। प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज भी दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। सर जब हम प्रोटेक्शन में कैटलिस्ट की अमाउंट यूज करते हैं, वो हाइड्रोजनस कैटलिस्ट होगा या होमोजेनियस होगा? हेटेरोजेनस, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि रिएक्शन बड़ा सिंपल है, आप जस्ट फिल्ट्रेशन करके कैटलिस्ट निकाल लेते हैं, और हम उसे कैटलिस्ट रिकवरी के बाद उसे दोबारा यूज कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं यूज करते, हम इकट्ठा करते रहते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते रहते हैं, बाद में रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है, इकट्ठा। लेकिन उसको आपको पानी में रखना होता है, ऐसे बाहर रखेंगे तो वो आग पकड़ लेता है। कागज आपको उसको पार्टिकल गिर जाए तो इजीली आप देन इन द लैब we are using the organic solvents which come from hydrocarbon. Mostly organic solvents are of hydrocarbon source. They are just like you have petrol in the lab. वहाँ पे हल्की सी चिंगारी जो है क्या करेगी, आग पकड़ लेगी। तो ये है। अच्छा, ये तो हमने अमीन के प्रोटेक्टिव डोज देखे, और इसके देखे अल्कोहल के, और अल्कोहल के लिए कौन कौन से देखे? अच्छा, ईथर वाले देखे, मैकेनिज्म किन के देखे? ईथर के कौन कौन से? सिलाइल ईथर, और भूल गए इतनी जल्दी? अल्कोहल की भी देखे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्डिहाइड की भी देखे, और कीटोन की भी देखे। सही है। तो अब आप लोगों को लेक्चर चाहिए,
चलिए मैं यहाँ डाल लेता हूँ, या आप लोग ईमेल दे दें, मैं सही कर देता हूँ। इनसे कह दीजिए कि वो साइट पे डाल दे, सर, स्लाइड शेयर कर दें। अच्छा सही है, ये मैं फिर ईमेल पे नजीम साहब भी कह दीजिए। नजीम साहब को मैं भेज देता हूँ, ठीक है।